So, very good morning, student. Today we will describe about the DCV working animation part 2. एक्चुअली मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे जो हम लोग वर्किंग एनिमेशन दिखाए थे वो वर्किंग एनिमेशन देख के तुम लोग को क्या समझ में आया वो एक्चुअल मैटर करता है। पिछला जो क्लास का डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का जो वर्किंग स्ट्रक्चर कि एक इंडस्ट्री में जब हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में काम करते हैं तो उस ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का फंक्शन क्या है ये मैं ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का लेआउट में एंड जो प्रीवियस जो मेरा इतना लेक्चर हुआ था स्पूल वाल्व पॉकेट वाल्व जो मैं समझाया था वो सारा चीज में दिखाया गया था कि यह बोला गया था कि व्हाट आर द एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल एंड द फंक्शंस एंड व्हाट आर द कंट्रोल टेक्निक ऑफ द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। नाउ in my previous lecture we have already see the directional control valve working structure or working animation. Today also we will again see the directional control valve working animation part 2, right? इसके लिए हम लोग 4x2 and 4x3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का वर्किंग एनिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले जाएंगे फर्स्ट डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का फ्लूइड फ्लो एंड पोजीशन के ऊपर। उसके लिए हम लोग एक YouTube का वीडियो हम लोग स्टडी करेंगे। Directional control valves are used to stop, start, route, and divert fluid streams without affecting the pressure level or the flow rate of the start. Look, here port A and port B is here, right? One second, give me a time. One second. Actually I'm not finding the size. Okay, so okay, no issue. So here you can see the pressure port inlet below of the diagram and the above diagram is port A and port B. Pressure port inlet matlab in my previous lecture I have already shown there that there are 3 port, 2 port, one port is P which is called pressure port or supply port. P हम लोग जब भी कोई पोर्ट का नाम देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि वर्किंग सप्लाई पोर्ट और प्रेशर पोर्ट। पोर्ट ए का मतलब है वर्किंग पोर्ट, पोर्ट बी का मतलब है वर्किंग पोर्ट। ये पोर्ट ए एंड पोर्ट बी ये दोनों पोर्ट एक्चुएटर के साथ कनेक्टेड रहता है। ये दोनों पोर्ट और डीसीवी से डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व से सिग्नल को लेता है और वो सिग्नल को एक्चुएटर में सेंड करता है और वो एक्चुएटर में सेंड होने के बाद वो एक्चुएटर मोशन प्रोड्यूस करता है। दैट इज द मेन वर्किंग प्रिंसिपल। तो हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे एनिमेशन में किस तरीके से कंट्रोल वाल्व वर्क करता है। तो यहाँ पे एक स्पूल डायग्राम दिया गया है जहां पे देखो फ्लूइड प्रेशर पोर्ट इनलेट से प्रेशर पोर्ट ए एंड आफ्टर स्पूल का मूवमेंट के वजह से फिर पोर्ट बी से प्रेशर पोर्ट ई इनलेट में फिर वो वापस आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा डायग्राम देखेंगे अभी। The flow rate of the system. Directional control valves are identified by the number of ways that fluid can flow and the number of positions the valve can produce. A way refers to the number of active porting connections, called ports. This valve has 3 ports, so it is a 3-way valve. The term position refers to the number of discrete operating positions of the internal valve element. For this spool valve, one position allows fluid to flow from the inlet to port A, and a second position allows fluid to flow from the inlet to port B. Therefore, this is a 2-position valve. So here it is 3x2 position valve. Why 3x2? Because 3 ports are there, port A, port B and pressure port inlet. And why it's 2 position? Because एक बार pressure port inlet से पोर्ट ए में फ्लूइड जा रहा है, एक बार प्रेशर पोर्ट इनलेट से पोर्ट बी में फ्लूइड जा रहा है। तो पोजीशन 2 है पोर्ट ए एंड पोर्ट बी में जो और पोर्ट प्रेशर पोर्ट इनलेट के बीच 2 वर्किंग हो रहा है, 2 काम हो रहा है, 2 पोजीशन है। दैट्स व्हाई दिस वाल्व इज कॉल्ड 3x2 directional control valve. This spool valve has 2 ports and 2 positions.
The first position allows fluid to flow freely. The second position blocks both ports. Even though both ports aren't physically blocked, the lack of fluid entering the pressure port also prevents fluid from exiting outlet port A. Therefore, both ports are defined as blocked, making it a two-way, two-position valve. Two. So here it is two-way two-position valve. What is the meaning of two-way two-position? Because देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर की है 2/2। जब मैंने क्या बोला था कि पहला जो नंबर वो डिग्निफाई करता है, वो डिनोट करता है मेरा नंबर ऑफ पोर्ट, एंड दूसरा जो नंबर है वो मुझे डिनोट करता है नंबर ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे क्या है, पहला पिछला वाला जो वर्किंग देखे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें मेरा कितना पोर्ट था, 3 पोर्ट था, कितना पोजीशन था, 2 पोजीशन था, दैट्स वाई 3/2। यहाँ पे हम लोग कितना पोर्ट देख रहे हैं, एक है मेरा पोर्ट ए और एक है मेरा प्रेशर पोर्ट। तो प्रेशर पोर्ट से पोर्ट ए में मेरा फ्लूइड पास कर रहा है, तो नंबर ऑफ पोर्ट मेरा 2 है, तो प्रेशर पोर्ट एंड पोर्ट ए, और नंबर ऑफ पोजीशन 2 इसलिए है कि देखो जब मैंने बटन को प्रेस नहीं किया, राइट, यहां से एक बार फिर से हम पहले से एक बार देखेंगे, जहां पे हम लोग बटन को प्रेस नहीं किए हैं तब मेरा प्रेशर पोर्ट से पोर्ट ए में मेरा फ्लूइड पास कर रहा है। लेकिन जब भी मैं बटन को प्रेस करूंगा ड्यूरिंग द स्पूल, एंड देखो इस स्पूल का लेफ्ट साइड में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तो वो जब भी हम लोग बटन पुश करेंगे तो स्पूल का मोशन होगा फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, जिसकी वजह से प्रेशर पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा और पोर्ट ए में कोई फ्लूइड नहीं आएगा, मीन सप्लाई पोर्ट मेरा बंद हो जाएगा और वर्किंग पोर्ट में मेरा कोई फ्लूइड नहीं आएगा। देखो ध्यान से, The first position allows fluid to flow freely. The second position blocks both ports. Even though both ports aren't physically blocked, the lack of fluid entering the pressure port also prevents fluid from exiting outlet port A. Therefore, both ports are defined as blocked, making it a two-way, two-position valve. To simplify fluid system drawings and schematics, all valves can be represented graphically. Boxes, sometimes called envelopes, are used to indicate the number of valve positions. So already I have discussed that the box, हम लोग जब भी कोई सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम लोग वहां पे बॉक्स को शो करते हैं। तो बॉक्स मेरा क्या शो करता है, बॉक्स मेरा शो करता है वाल्व का पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन। तो हम लोग जब भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते तो हम लोग 2 बॉक्स या 3 बॉक्स डालते, जब ये 3 नंबर ऑफ बॉक्स 3 होगा तो वो मतलब 3 पोजीशन होगा, अगर नंबर ऑफ बॉक्स 2 होगा तो वो 2 पोजीशन होगा। Since this is a two-position valve, its graphic representation has two adjacent boxes. तो यहाँ पे 2/2 है, तो यहाँ पे मेरा कितना बॉक्स होना चाहिए, 2 बॉक्स होना चाहिए। देखो मेरा यहाँ पे एक बॉक्स हुआ है और देखो यहाँ पे 2 बॉक्स शो कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट दोनों मिला के 2 बॉक्स यहाँ पे शो कर रहा है। और 2 वे मतलब कितना पोर्ट है, 2 पोर्ट है। अब मैं देखूंगा सर्किट डायग्राम मेरा कैसे ड्रॉ हो रहा है। For complex valves, the ports may also be labeled. So यहाँ पे प्रेशर पोर्ट से ए पोर्ट, मतलब प्रेशर पोर्ट से मेरा सप्लाई पोर्ट में मेरा फ्लूइड पास कर रहा है। देखो यहाँ पे प्रेशर पोर्ट से ए पोर्ट तक एक कनेक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब है सर्किट डायग्राम देख के हम लोग समझ सकते हैं कि प्रेशर पोर्ट पी से लेकर मेरा जो वर्किंग पोर्ट है वहां तक मेरा फ्लूइड पास कर रहा है। For pressure, outlet ports are typically given alpha characters starting with A. Other times, the letter stands for the destination of the fluid. For instance, the letter T would indicate a port that is connected to a tank. This is a fairly simple valve, so port labels are not required. A solid arrow indicates the direction of liquid flow. The first position. So what is the meaning of the arrow? Meaning of the arrow is it shows the direction of the flow. फ्लो मेरा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या तो राइट से लेफ्ट या तो लेफ्ट से राइट, कौन सा डायरेक्शन में मेरा फ्लो जा रहा है उसको शो करने के लिए हम लोग एक एरो को इंडिकेट करते हैं, जो यहाँ पे मेरा वीडियो में दिखाया गया है। Valve allows fluid to flow from the pressure port to port A, so an arrow is drawn in the first box to indicate fluid flow. A T indicates that a port or way is blocked or closed. This valve's first position has no ports blocked, but its second position blocks both. The second box corresponds to the second position of the valve. Therefore, 2 T's are added to illustrate the lack of fluid flow in the second position.
Next, lines are drawn to indicate the normal position of the valve. सो सेकेंड बॉक्स में मेरा क्या हुआ है, सेकेंड बॉक्स में जब भी देखो सेकेंड बॉक्स का स्पूल डायग्राम देखो जो टॉप में डायग्राम दिया हुआ है, सेकेंड बॉक्स में मेरा प्रेशर पोर्ट से ड्यूरिंग द पुश बटन द स्पूल इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उसके सॉरी राइट टू लेफ्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर पोर्ट मेरा ब्लॉक हुआ है और पोर्ट ए में कोई फ्लूइड पास नहीं कर रहा है। इसका मतलब दोनों पोर्ट के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए सर्किट डायग्राम में दोनों पोर्ट को शटडाउन कंडीशन में दिखाया गया है। और शटडाउन कंडीशन में दिखाने के लिए हम लोग ये जो टी शेप सिंबल हम लोग प्रयोग करते हैं सर्किट डायग्राम में, जिससे शो होता है कि मेरा सप्लाई पोर्ट से मेरा वर्किंग पोर्ट के बीच कोई कनेक्शन नहीं है या कोई रिलेशन नहीं है। The normal position is defined as the position of the valve when its spool is unshifted and the power is off. This means that any mechanical actuators, such as springs, are in their non-actuated positions. Electrical actuators, such as solenoids, are powered off. The normal position can sometimes be referred to as the unshifted, de-energized, or unactuated position. In this case, position 1 is the normal position. Therefore, the lines to indicate the normal position are drawn in the first box. On a hydraulic schematic, the lines that indicate the normal position will be connected to other devices in the system. Valves that do not have mechanical or electrical actuators do not have a normal position because they must be manually moved. When shifted, they remain in that state until manually shifted to another position. The terms normally opened and normally closed are used to describe the condition of a valve when it is in the normal position. For this valve, the normal position is position 1, which allows unrestricted fluid flow through the open ports. Therefore, this valve is a normally opened valve. Additionally, this valve is a spring return valve, meaning that after it is actuated, the spring returns the spool to the normal position. A spring symbol is placed next to the block, representing the normal position. Actuators used to change valve positions can be mechanical, pneumatic pilot, or electric solenoid. To complete the diagram, the primary actuator symbol is placed on the other end of the graphic symbol. In this case, the actuator is a push button. Mechanical actuators change valve positions with springs, push buttons, plungers, levers, and cam rollers. Pneumatic pilots change valve position with a pressured air signal. Electric solenoids that change valve positions by directly moving the valve elements are called. So these are the valve actuator symbol. Here it is. Look that here it is. We are using some spring. Okay. So when we are applying push button, that time the spring is compressed. When we are applying पुश बटन टू द टेंशन पोजीशन, मतलब पुश बटन को अगर मैं वापस लेके आता हूँ तो मेरा स्प्रिंग क्या होता है, कंप्रेशन से वो रिलीज हो जाता है। तो वाल्व एक्चुएटर सिंबल में हम लोग स्प्रिंग यूज कर सकते हैं, पुश बटन यूज कर सकते हैं, प्लंजर यूज कर सकते हैं, लीवर मैंने ये सब चार चीज मैं वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। लीवर यूज कर सकते हैं, कैम रोलर यूज कर सकते हैं, एंड न्यूमेटिक पायलट मतलब न्यूमेटिक फोर्स भी यूज करके हम लोग ये वाल्व को एक्चुएटिंग कर सकते हैं। Direct solenoids. Electric solenoids that open small pilot valves and allow pressurized air to move the valve element are called solenoid-controlled pilot operators. Here is a similar valve to the one previously shown. It has 2 ports and 2 positions. So it is also a 2-way, 2-position valve. To illustrate the differences with this valve, let's build its graphic symbol. It is a 2-position valve, so the graphic symbol will have 2 adjacent boxes. This valve also has 2 ports. However, in the normal non-actuated position, both ports are blocked. Therefore, it is a normally closed valve. When the valve is actuated, fluid is allowed to flow from the pressure port to... Look, here it is the difference between the normally opened valve, normally closed valve. थोड़ी देर पहले जो हम लोग वाल्व देखे थे, राइट, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो वाल्व देखे थे दैट इज नॉर्मली ओपेन्ड वाल्व। देखो यहाँ पे मैं अगर बटन को पुश बटन को बटन अगर पुश करता हूँ तभी जाके ये क्लोज होता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन रहता है। इसका मतलब प्रेशर पोर्ट से सप्लाई पोर्ट में फ्लूइड
सॉरी सप्लाई पोर्ट से वर्किंग पोर्ट में मेरा फ्लूइड कंटिन्यूअसली पास करता है। अगर मैं बटन को पुश कर देता हूं तब मेरा वो डीसीवी बंद हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है नॉर्मली ओपन वाल्व, राइट। और अब जो हम लोग देख रहे हैं, एक सेकेंड, अब जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व। नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व में देखो कि यहाँ पे प्रेशर पोर्ट और पोर्ट ए, दोनों ही पोर्ट ए, ये भी मेरा 2/2 डीसीवी है, बट प्रेशर पोर्ट से मेरा पोर्ट ए में लिक्विड नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक स्पूल के वजह से वो रुका हुआ है, वो फ्लूइड वो पोर्ट ए से पास नहीं कर पा रहा है, मतलब सप्लाई पोर्ट से वर्किंग पोर्ट में मेरा फ्लूइड पास नहीं कर पा रहा है। तो ये मेरा नॉर्मल कंडीशन है क्योंकि हम लोग अभी पुश बटन को दबाया भी नहीं है, पुश बटन को प्रेस भी नहीं किए, तो पुश बटन बिना प्रेस करते हुए नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर पोर्ट से सप्लाई पोर्ट में, सॉरी वर्किंग पोर्ट में मेरा फ्लूइड पास नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व। अब अगर मैं पुश बटन को क्लिक करता हूं तो मेरा स्पूल राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएगा, जिसके वजह से पोर्ट ए ओपन हो जाएगा, और पोर्ट ए अगर ओपन होगा तो प्रेशर पोर्ट से पोर्ट ए में मींस वर्किंग सप्लाई पोर्ट से मेरा वर्किंग पोर्ट में मेरा फ्लूइड पास करेगा, तब उस पास करेगा और वो मेरा एक्चुएटर में सिग्नल भेजेगा और एक्चुएटर मोशन प्रोड्यूस करेगा। तो उस ये वर्क स्ट्रक्चर होने के लिए, ये वर्किंग होने के लिए मुझे या इस तरीके का वाल्व में बटन को पुश करना पड़ रहा है, लेकिन पिछला वाला वाल्व में मुझे बटन पुश नहीं कर पा रहा था, वहां पे बटन को पुश करना पड़ रहा था। वाल्व को क्लोज करने के लिए इस कंडीशन में वाल्व को बटन को पुश करना पड़ेगा वाल्व को ओपन करने के लिए। पिछला वाला जो वाल्व था वो मेरा 2/2 डीसीवी ओपन सेंटर्ड ओपन वाल्व था, और यहाँ पे 2/2 डीसीवी क्लोज वाल्व है। नाउ लेट्स सी। This valve also has two ports. However, in the normal non-actuated position, both ports are blocked. Therefore, it is a normally closed valve. When the valve is actuated, fluid is allowed to flow from the pressure port to port A. A spring returns the valve to its normally closed position, and a push button actuates it to the open position. Therefore, this valve is a two-way, two-position, normally closed, spring return push button operated valve. While it is similar to the previous example, the differences in the now it's a comparison based, right? This is a two-way two position valve normally closed. Why? Because button is not pushed, but the pressure port से port A तक मेरा कोई fluid pass नहीं कर पा रहा है, मींस नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज्ड है, स्प्रिंग रिटर्न है, देखो ये स्प्रिंग लगा हुआ है इसीलिए वो स्प्रिंग रिटर्न बोला जा रहा है। पुश बटन ऑपरेटेड, देखो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पुश बटन ऑपरेटेड। यहाँ का जो फर्स्ट सर्किट डायग्राम है वो शट ऑफ कंडीशन में, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज्ड है इसलिए शट डाउन कंडीशन में, और सेकंड जो सर्किट डायग्राम में जब ये बटन में पुश करूंगा प्रेशर पोर्ट से पोर्ट ए में फ्लूइड पास करेगा, और ये सेकंड सर्किट डायग्राम में पी से लेकर ए तक फ्लूइड का डायरेक्शन शो करेगा। ये पिछला वाला वाल्व था टू वे टू पोजीशन वाल्व व्हिच इज नॉर्मली ओपन वाल्व, देखो यहाँ पे बटन पुश नहीं है बट फिर भी प्रेशर पोर्ट से मेरा पोर्ट ए में फ्लूइड पास कर रहा है, दैट्स व्हाई पोर्ट प्रेशर पोर्ट से पोर्ट ए की तरफ मेरा एरो डायरेक्शन शो किया गया है। स्प्रिंग ऑपरेटेड है तो ये पे स्प्रिंग दिया हुआ है, देखो इधर स्पूल डायग्राम में एक स्प्रिंग दिया हुआ है, और सेकंड कंडीशन अगर मैं बटन को पुश कर देता हूं तो मेरा प्रेशर पोर्ट से पोर्ट ए में मेरा फ्लूइड पास नहीं कर पाता है, तो इसलिए सेकंड सर्किट डायग्राम में जो यहाँ पे सर्किट को डायग्राम को शट ऑफ कंडीशन में रखा गया है, और यहाँ पे दोनों साइड में दोनों बटन का डायग्राम दिया गया है टू शो दैट दिस वाल्व इज टू वे टू पोजीशन वाल्व। कैसे पता चलेगा? दो बक्सा है मतलब दो पोजीशन, दो पोर्ट है मतलब टू पोर्ट, तो टू वे टू बाई टू डीसीवी हुआ। ये देख के समझ में आ रहा है कि नॉर्मली ऑपरेटेड है या नॉर्मली क्लोज्ड है, क्योंकि अगर पहला वाला सर्किट डायग्राम में फ्लूइड पास कर रहा है मतलब नॉर्मली ओपन, यहाँ पे पहला वाला सर्किट डायग्राम में शट डाउन कंडीशन में तो नॉर्मली क्लोज, तो नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज्ड मुझे पता चल जाएगा। स्प्रिंग रिटर्न है, अब अगर स्प्रिंग लगा हुआ है पीछे लेफ्ट साइड में तो ये स्प्रिंग रिटर्न है। पुश बटन अगर राइट साइड में पुश बटन लगा हुआ है तो ये पुश बटन ऑपरेटेड है। इस तरीके से हम लोग वाल्व को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा वाल्व है, कौन सा कितना पोर्ट है, कितना पोजीशन है, ओपन वाल्व है या क्लोज वाल्व है, स्प्रिंग रिटर्न वाल्व है या पुश रोलर रिटर्न वाल्व है, पुश बटन ऑपरेटेड है या लीवर रिटर्न ऑपरेटेड है या रोलर ऑपरेटेड है या न्यूमेटिक ऑपरेटेड है, ये सारा चीज हम लोग को सर्किट डायग्राम से ही पता चल जाएगा। Now it's a three-way two-position valve. Look at that. Look here. Look here. एक second. Now this is the first condition where E or P means A for the supply working port,
P फॉर द प्रेशर पोर्ट एंड E फॉर द हाइड्रोलिक रिटर्न पोर्ट। इसको तुम T नाम दे सकते हो, R नाम दे सकते हो जब न्यूमेटिक यूज करेंगे, E और T नाम दे सकते हो अगर तुम लोग उसमें हाइड्रोलिक यूज करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो A पोर्ट से E पोर्ट में फ्लूइड वापस जा रहा है, इसका मतलब एक्चुएटर या वर्किंग पोर्ट से फ्लूइड हाइड्रोलिक रिटर्न पोर्ट में वापस जा रहा है। और सेकेंड कंडीशन में अगर मैं बटन को पुश करूंगा तो मेरा ये स्पूल जो है वो स्पूल स्प्रिंग के दौरान नीचे की तरफ जाएगा, तो मेरा P से लेकर A के तरफ मेरा फ्लूइड पास करना शुरू करेगा। तो मतलब प्रेशर पोर्ट से मेरा वर्किंग पोर्ट मेरा फ्लूइड पास करेगा। यहाँ पे कितना पोर्ट है? 3 पोर्ट है, A, E एंड P, सो इट्स 3। कितना पोजीशन है? 2 पोजीशन है, एक बार A से E जाएगा, एक बार P से A जाएगा, तो इससे 2 पोजीशन है, तो 3 वे 2 पोजीशन वाल्व नॉर्मली क्लोज्ड। बिकॉज देखो P से A की तरफ कोई तो फ्लूइड जा नहीं रहा है नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि बटन तो अभी पुश्ड कंडीशन में नहीं है, बटन अभी ओपन कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में फ्लो मेरा P से मतलब सप्लाई पोर्ट से वर्किंग पोर्ट में नहीं जा रहा है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज्ड है। बट स्प्रिंग रिटर्न है क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग यूज किए, पुश बटन ऑपरेटेड है क्योंकि यहाँ पे पुश बटन यूज किए। अभी हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम। Applications in fluid power for three-way valves are for directional control. Here we have a typical three-way valve with two operating positions. This valve has an inlet port P, exhaust port E, and output port A. In its normal position, inlet port P is blocked and outlet port A is connected to exhaust port E. The second position allows fluid to flow from the pressure port P to outlet port A and blocks exhaust port E. So according to the working principle, जब पुश बटन क्लिक बटन को मैंने पुश किया तो स्प्रिंग के दौरान वो स्पूल नीचे की तरफ गया, तो P से लेकर A की तरफ फ्लूइड जा रहा है। देखो यहाँ पे ऊपर वाला सर्किट डायग्राम, P से लेकर A की तरफ मतलब सप्लाई पोर्ट से लेकर वर्किंग पोर्ट तक मेरा फ्लूइड पास कर रहा है। दैट टाइम एग्जॉस्ट पोर्ट और रिटर्न पोर्ट, हाइड्रोलिक रिटर्न पोर्ट, वो मेरा ब्लॉक्ड है। तो ये मेरा ओपन कंडीशन हुआ। कैसे ओपन कंडीशन हुआ? जब मैंने बटन पुश किया। और बटन को अगर हम लोग फिर से सेम आगे वाला इनिशियल पोजीशन में लेके चल जाऊंगा तो मेरा P से लेकर A मेरा ब्लॉक्ड हो जाएगा, इसलिए P मेरा शटडाउन कंडीशन दिखाएगा। देखो सर्किट डायग्राम में P शटडाउन कंडीशन शो किया है, और A से लेकर E की तरफ मेरा फ्लूइड फ्लो करेगा, और इसका मतलब है मेरा वर्किंग पोर्ट से एग्जॉस्ट पोर्ट और रिटर्न पोर्ट की तरफ मेरा फ्लूइड फ्लो करेगा। तो इसीलिए बटन जब पुश कंडीशन में नहीं रहेगा तो इसको हम लोग नॉर्मली क्लोज्ड बोलेंगे, क्योंकि वर्किंग पोर्ट से सप्लाई पोर्ट से मेरा वर्किंग पोर्ट में मेरा फ्लूइड पास नहीं कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व बोलेंगे। The valve is also spring return and push button operated. Here is another three-way two-position. Now it's a normally opened valve. Look here कि जब मेरा बटन पुश नहीं है तब मेरा सप्लाई पोर्ट से वर्किंग पोर्ट की तरफ फ्लूइड मेरा पास कर रहा है, और जब मैं बटन को पुश करूंगा तब मेरा वर्किंग पोर्ट से रिटर्न पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट में मेरा फ्लूइड पास करेगा। तो यहाँ पे P से लेकर A की तरफ फ्लूइड जाएगा और E पोर्ट शटडाउन रहेगा। सेकेंड कंडीशन में जब मैंने बटन पुश कर दूंगा तब मेरा P शटडाउन कंडीशन में रहेगा और A से लेकर मेरा E की तरफ फ्लूइड जाएगा। देख लो ध्यान से। Also has an inlet port P, exhaust port E, and output port A, but they are in a different configuration. In its normal position, exhaust port E is blocked and fluid flows from pressure port P to outlet port A. The second position, pressure port P, is blocked and allows fluid to flow from outlet port A to exhaust port E. The valve is also spring return and push button operated. Three-way directional control valves have many applications. Now it's a application based working animation. So kindly concentration के साथ इसको देखना ताकि तुम लोग को समझ में आएगा कि एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल में किस तरीके से काम कर सकता है। सो ये मेरा एक्चुएटर पार्ट है, ठीक है। सिलेंडर जहाँ पे लिखा हुआ है ये मेरा एक्चुएटर पार्ट है। आई थिंक ये डायग्राम देख के तुम लोग को लग ही रहा होगा कि ये ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का एक लेआउट यहाँ पे शो किया गया है, जहाँ पे मेरा एक सिलेंडर है जो मेरा एक्चुएटर है। यहाँ पे A मतलब वर्किंग पोर्ट है जो डायरेक्टली एक्चुएटर के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद E मतलब ये मेरा रिटर्न पोर्ट है, और P मतलब मेरा ये प्रेशर पोर्ट है और सप्लाई पोर्ट है। यहाँ पे एक पंप लगा हुआ रहता है, पंप हम लोग यूज करते हैं फ्लूइड के अंदर या ऑयल के अंदर पावर जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग वो पंप यूज किया, और ये मेरा टैंक है जिसमें मेरा फ्लूइड जाके स्टोर हो रहा है, या तो ऑयल चेंबर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ध्यान देते हैं इसमें क्या हो रहा है। One of the most common applications
is for the control of single acting cylinders. In this application, fluid is pumped from a tank to pressure port P. With the valve in the normal position, fluid is blocked. When the valve is actuated, fluid flows from pressure port P through outlet port A to the cylinder. The cylinder extends and remains extended until the valve changes positions. When the valve de-energizes, the spool returns to position 1, pressure port P is blocked, and exhaust port E is opened. The cylinder retracts and fluid flows from the cylinder through port A and out exhaust port E. From there, the fluid returns to the tank. Here's a graphical rendering of the same system using symbols as they would appear on a schematic diagram. 2- and 3-way control valves are ideal for use as directional control valves to operate cylinders or hydraulic rams, filling and draining tanks. वही सेम डायग्राम का जो पिछला स्लाइड में जो डायग्राम था वही डायग्राम का सर्किट डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है. Successful operation of many different fluid systems. हम लोगों को आई थिंक अच्छे तरीके से ये समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग किस तरीके से डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व किस बेसिस में काम करता है, ये हम लोग को समझ में आ ही गया होगा. तो इसके बाद हम लोग जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो इस तरीके से 2x2, 3x2, 4x3 ये सारा वाल्व काम करता है ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में. इसका नोट्स भी ऑलरेडी मूडल में 30 जून में 30 मई का क्लास में ऑलरेडी दे दिया गया है कि हाउ डीसी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का नोट्स. उसमें 2x2, 3x2, पुल वाल्व, पॉपेट वाल्व, पुल वाल्व, सारा वाल्व के बारे में बता दिया गया है. तो उसको तुम लोग थोड़ा स्टडी कर लेना. और डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का वर्किंग एनिमेशन तो देख ही चुके होंगे और आई थिंक ये सारा डायग्राम तुम लोग को याद भी रहेगा. तो इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे कल से, जो है मेरा नॉन रिटर्न वाल्व, pressure reducing valve, unloading valve, all that which is acts as a pressure regulating valve basically. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व का स्टडी करेंगे. सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय वीडियो लेक्चर एंड हैव ए नाइस डे. स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू.